promise I will never hurt you again. My darling, I told you I'm not perfect man, but I promise I will never hurt you again. My darling, I told you Good afternoon, this is your captain but speaking. I promise I will never hurt you again. My darling, I told you I'm not perfect man, but I promise I will never hurt you again. This is ATR 72-500 and this is aircraft which I fly. As a first officer, I am qualified on this aircraft. This is a French manufacturer. ATR stands for Aviano de Transport Regional. नहीं मेरा फ्रेंच बहुत ख़राब है. इंग्लिश में फिर से कोशिश करते हैं. इसका मतलब इंग्लिश में ये होता है एयर रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. और दिस इज ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट. Basically, it's designed for the regional flights. We go regional, and this is best regional category aircraft. It's a twin engine turboprop aircraft. These are its power plant, and it's high wing aircraft. You see most of aircraft जब fly करते हो like 737, 320, उनके wings जो होते हैं either below of the belly से start होते हैं. But this is high wing aircraft. इसके wings ऊपर है और इस डिज़ाइन के पीछे बहुत सारे रीज़न है. Today I tell you less technical and more interesting things about the ATR. Let's start with the speed. This aircraft can cruise up to 250 knots, and altitude, how high it can fly, it can go 25,000 feet high. And this aircraft is capable of really, this aircraft can land on really short runways and take off from the short runways. This is why we can go the places where no one can go, where 320, 737 cannot land, this aircraft can land. Let's go further. So I'll tell you one interesting thing about the right engine. Left engine, right engine से ज़्यादा स्पेशल है. क्यों है मैं बताता हूँ. ये right engine act as a APU. अगर हमारे पास वो नहीं है तो we can start the right engine, and that engine without spinning the propeller, the fan, ये हमें engine में aircraft में air conditioning और electricity दे सकता है. So that is another feature. Most of aircraft में APU होता है जो tail section में होता है, ऑक्सिलरी पावर यूनिट. इस एयरक्राफ्ट में APU नहीं है. उसके जगह पे इंजन को APU में कन्वर्ट किया जाता है. विदाउट रोटेटिंग द प्रोपेलर हम लोग क्या करते हैं, इंजन ऑन कर देते हैं. दैट एक्ट एज अ APU, ऑक्सिलरी पावर यूनिट. अब ATR वैसे ही बहुत छोटा एयरक्राफ्ट है. इसमें एडिशनल इंजन लगाना मतलब इट विल बी एड ऑन वेट. तो इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस वेंट टू स्मार्ट और उन्होंने क्या किया, इस राइट इंजन को ही APU बना दिया. एंड दिस मोड ऑफ दिस राइट इंजन वी कॉल होटल मोड. तो हम इस इंजन को होटल मोड में चलाते हैं और इट डू द वर्क ऑफ APU का काम कर लेता है. और नो एडिशनल इंजन रिक्वायर्ड लाइक अदर एयरक्राफ्ट. सो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस इंजन्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटर्नल. सो this is the fuselage where the passenger and cargo and the pilot sit. This is the pressurized aircraft. As we go up, the air density decreases, and there's a lack of oxygen in the air. So हम इसे pressurize करते. This is a pressurized thing. This is the wing. This is the high wing type, and this is the tail section of this aircraft. So you see, this tail is also unique. This we call T-tail. इसे T-tail कहते हैं. And as you see, the front of this wing, so this is you see black in color. तो ये black color होता है, वो रबर का होता है. As you go up, your temperature decreases, and temperature decreases, तो icing होने के chances बहुत होते हैं. तो अगर wing के ऊपर icing होगी तो इसका shape खराब हो जाएगा और इसके ऊपर weight बढ़ेगा. तो icings are not good for the aircraft. तो उसको anti ice बनाने के लिए these are the rubber boots. वो basically यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, और इंजन का जो intake होता है वहाँ पे भी होता है. तो बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो एयरक्राफ्ट आइसिंग होने लगती है. तो उसको ओवरकम करने के लिए इसमें जो डिज़ाइन है वो क्या करता है, वी ऑन आर लेवल 3 एंटी आइसिंग सिस्टम, एंड दिस रबर बूट इन्फ्लेट्स इन द सेंस उनकी साइज चेंज हो जाती है. तो उनके ऊपर जो आइस होता है वो ब्रेक हो जाता है. एंड दिस इज हाउ वी कैन गो हायर एंड फ्लाई इन द आइसिंग कंडीशन. दिस एयरक्राफ्ट इज सर्टिफाइड ऑल वेदर ऑपरेशन. दिस एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई इन रेन. दिस एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई इन द icing condition and all weather operations. So this is the very good thing about this ATR. Let's go further. This is the Pratt & Whitney engine, and which have the 6-blade propeller.
this propeller which rotates and create a forward movement, and this is how this aircraft get the thrust. Let's go to the tail session. और इंटरेस्टिंग चीज़ अबाउट दिस टेल सेशन इज जो हॉरिजॉन्टल पैनल है, ओके, दैट कंट्रोल्स एयरक्राफ्ट पिच, लाइक पिच अप पिच डाउन. तो अगर ये जैम हो गया तो वी कैन नॉट गो डाउन, वी कैन नॉट क्लाइंब. तो इस एयरक्राफ्ट में एक स्पेशल फीचर है जिसमें अगर ऐसा कुछ होता है, ये जैम हो जाता है हॉरिजॉन्टल पैनल, तो इसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं. एंड दिस राइट वन विल ऑपरेट इंडिविजुअली एंड लेफ्ट वन विल ऑपरेट इंडिविजुअली. मतलब राइट वन अपने आप से काम करेगा अलग से, लेफ्ट वन अपने आप से काम करेगा अलग से. सो अगर कुछ भी जैम होता है तो स्टिल यू विल हैव द कंट्रोल. दैट्स अ सेफ्टी फीचर ऑफ दिस एयरक्राफ्ट. जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो इस चैनल पे वो होगा फ्लाइट मूवी के बारे में, जिसमें क्या होता है, जो इनका जो स्टेबलाइजर होता है वो डाउन पोजीशन में स्टक हो जाता है एंड दे एंड अप क्रैशिंग द एयरक्राफ्ट. सो आई विल बी मेकिंग द रिएक्शन वीडियो ऑन दैट फ्लाइट मूवी. जो मूवी है उसके ऊपर मैं रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा एंड आई टेल यू एग्जैक्टली अगर रियल फ्लाइट क्रू होते तो क्या होता. लेट्स गो टू द टेल सेशन. एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे स्टार्टिंग में कार्गो होता है. जो पीछे का जो एरिया होता है यहाँ पे होता है ब्लैक बॉक्स. ब्लैक बॉक्स आपको सबको पता होगा, मुझे पता है श्योर. बट ब्लैक बॉक्स बेसिकली होता क्या है, उसमें होता है CVR और DFDR. CVR स्टैंड्स फॉर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर. जो कॉकपिट में जितनी भी आवाज़ें हम लोग जितनी भी बातें करें, जितनी भी मस्ती करें, सब उसमें रिकॉर्ड होती है एंड दे कैन लिसन लेटर ऑन आफ्टर द फ्लाइट. और इन फ्लाइट इसको एक्सेस करना भी पॉसिबल है. कोई दरवाज़ा नहीं है वहाँ पे जाने के लिए, इसको एक्सेस बाहर से करते हैं. और उसके साथ होता है DFDR. तो DFDR स्टैंड्स फॉर डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर. इसमें फ्लाइट्स में जो भी पैरामीटर्स है, इंजन रिलेटेड, ऑल्टीट्यूड, नेविगेशन रिलेटेड, वो सब उसमें रिकॉर्ड होती है डिजिटली. तो इसे कहते हैं डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर. कंबाइनली वी कॉल ब्लैक बॉक्स. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल. अरे यार, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी. इस एयरक्राफ्ट में ओनली दो फ्लैप सेटिंग है. यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैप इंडिकेशन. एक है 15 विच वी यूज फॉर टेक ऑफ एंड अनदर वन इज 30 विच वी यूज फॉर लैंडिंग. फ्लैप्स के साइड में अगर विंग्स पे आप देखोगे, यहाँ पे जो ऐसे वायर्स जो बाहर आई हुई है उसे कहते हैं स्टैटिक डिस्चार्जर. इसमें बहुत सारा स्टैटिक होता है और इफ इन केस ऑफ देयर इज अ लाइटनिंग तो बहुत सारा स्टैटिक क्रिएट हो जाता है. तो अगर आप ये विंग टिप में और लीडिंग एज में वायर्स देखोगे जो आउटसाइड आ रहे हैं, 4 वायर्स हैं. सो दिस हेल्प टू डिस्चार्ज द स्टैटिक. ऐसे एयरक्राफ्ट में हर जगह पे लगे हुए, विंग्स पे, स्टेबलाइजर पे. So that static can interfere with the aircraft communication system. To avoid that interference, इसमें होते हैं स्टैटिक डिस्चार्जर्स. जो स्टैटिक डिस्चार्जर्स क्या होता है, स्टैटिक को डिस्चार्ज करते हैं. तो ये विंग्स पे, टेल सेशंस पे लगे हुए बहुत सिंपल इक्विपमेंट है बट हेल्प्स अ लॉट टू डिस्चार्ज द स्टैटिक. तो ये था एक्सटर्नल इंट्रोडक्शन अबाउट माय बेबी. नाउ इट्स टाइम टू टेक यू गाइस इनसाइड द बिगिनिंग सेशन फ्रॉम द nose to the cabin. There is a beginning session and there is one door here which we call cargo door. आपका जो कार्गो होता है अदर एयरक्राफ्ट में क्या होता है, इट्स स्टोर आपके नीचे स्टोर होता है इसके बेली में. बट इस एयरक्राफ्ट में जो कार्गो होता है वो यहाँ पे होता है. यहाँ पे पैसेंजर कैबिन है, यहाँ पे कॉकपिट है और इन दोनों के बीच में जो जगह होती है इसे बोलते हैं फ्रंट कार्गो. और आप कैबिन से कॉकपिट में जा सकते हो. सो यू हैव 2 doors. सो दिस इज अनलाइक दी अदर एयरक्राफ्ट. अदर एयरक्राफ्ट में कार्गो हमेशा पैसेंजर्स के नीचे होता है. सेकेंड जो कार्गो सेशन है वो टेल सेशन में आप दो एज अ पैसेंजर, एज अ क्रू, वी कैन नॉट एक्सेस द टेल कार्गो एज वेल एज द कार्गो विच इज हियर इन फॉरवर्ड सेशन ऑफ दिस एयरक्राफ्ट, क्योंकि ये बहुत हाईली सिक्योर्ड एरिया होता है, यहाँ पे जा नहीं सकते. लेट्स मूव टू द डोर्स. सो दिस एयरक्राफ्ट हैव 4 doors inside the cabin. Out of the left side of the door is एंट्री डोर. इसको लैडर की ज़रूरत नहीं है, डोर में ही सीढ़ियाँ बनी हुई है. इसे क्लोज करेंगे तो दिस विल क्लोज. दिस इज सर्विस डोर. सो कैबिन क्रू यही से खाना अपलिफ्ट कराती है, पानी अपलिफ्ट कराते हैं. और दिस इज़ देयर वर्क स्टेशन. यहाँ पे हॉट वाटर के जार्स आते हैं, ठीक है. हियर दे कैन स्टोर देयर अदर स्टफ, फूड एंड ऑल. दिस इज़ अवन. तो इस एयरक्राफ्ट में आपको खाना गर्म मिलेगा. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एयरक्राफ्ट. So this is small workstation for crew where they can prepare your meal, they can prepare your food, tea and coffee. अच्छा, ये नीचे जो empty session है यहाँ पे कार्ट होता है. जो फूड कार्ट क्रू आइल में लेके आती है वो यहाँ पे स्टोर होता है. Now this session is empty and this is senior cabin crew seat, senior cabin crew jump seat.
a control panel. The best part about this configuration, इसमें middle seat नहीं है. ये वाले एयरक्राफ्ट में मिडिल सीट नहीं है. सोचो, अमेजिंग. Only 2 seat configuration. इसीलिए if you see, it's A and then C. There is no B. And here D and F. No E. So 2 and 2 seat configuration. The seats are so much comfortable. And this can be 72-seater aircraft or 78-seater single class configuration. For junior cabin crew, the seat is here. This will come out. So this is junior cabin crew seat, and she can communicate through this. This is emergency exit. So in cabin, this aircraft will have 4 emergency exit. One is here, second one is here, third is at the end on my right and left. There is another emergency exit. All 4 doors can be used for evacuation purpose. So again, one more interesting thing about this door, if you ever have traveled through the regional carrier like a ATR, तो ये डोर एक्ट करता है स्टेप लैडर की तरह. Best part about this ladder is so now this is ladder to aircraft के अंदर जाने के लिए. And if you close this is door. And this door you don't require any ground essential power. आपको अलग से स्टेप लैडर नहीं लगाना, कुछ नहीं. सिर्फ डोर खोला, स्टेप्स बन गए, आप क्लाइंब कर लिए, डोर को बंद कर गया, स्टेप कन्वर्ट हो गया डोर में. सो दिस इज where we go remote area जहाँ पे आपको ज़्यादा ग्राउंड इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस एयरक्राफ्ट. When we are talking about door, इस एयरक्राफ्ट में एक डोर है जो किसी एयरक्राफ्ट में नहीं होता. अच्छा, ये छोटा विंडो दिख रहा है, ये कॉकपिट में है, और ये बहुत यूनिक चीज़ है जो सिर्फ ATR में है. अच्छा, मैं इसका यूज़ बताता हूँ, बहुत हेल्पफुल है. तो बेसिकली क्या होता है, when we land, when we reach a destination, just before departure, there is a lots of paper exchange. बहुत टेक्निकल पेपर्स होते हैं, टेकलॉग होती है, ट्रिम शीट होती है, बहुत सारी पेपर, और विद ग्राउंड पर्सन हम लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करते हैं. तो वो एक्सचेंज करने के लिए जो ग्राउंड पर्सन होता है उसे ऑल द वे फ्लाइट डेक आना पड़ता है, कैप्टन को पेपर देने पड़ते हैं, वी वेरीफाई द पेपर, कैप्टन साइन द पेपर, उसके ऑल द वे नीचे जाना पड़ता है. तो ये एयरक्राफ्ट में अगर आप देखो जो सर्विस डोर है जहाँ से आप, या जो पैसेंजर एंट्री डोर है वो सबसे पीछे है. तो इमेजिन ग्राउंड पर्सन कमिंग ऑल द वे हियर, ओके, फिर यहाँ से वो कॉकपिट में आएगा, पेपर साइन करेगा, विच इज रियली टाइम कंज्यूमिंग. तो इस एयरक्राफ्ट में एक हैच होता है जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन हैच, जो है लेफ्ट साइड में यहाँ पे होता है. छोटा सा विंडो होती है फ्रॉम वेयर वी कैन एक्सचेंज द पेपर. तो सीधा आप यहाँ से कॉकपिट में पेपर्स दे सकते हो और यहाँ से एक पेपर रिसीव कर सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट द ATR cabin. This cabin is really comfortable, and this is all about my baby AVR, the transport regional ATR के बारे में. और if you have travel in this aircraft, अगर आपने कभी ट्रैवल किया है, आप ट्रैवल करोगे, आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो. I really want to keep this video less technical and more little bit interesting. तो मैंने बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें कवर नहीं की है. अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेशन में बोल सकते हो, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो. I'll answer them all. Now let's end this video here. I see you in my next video. Till the time, stay safe, stay happy, and trust your mind. Bye, baby. My darling, I'll go to